अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन व कफ़ा बि रब्बिका वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. I welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy and blessings of Allah be upon all of you. The topic of today's evening is the reality of jinn and magic. And I have based my talk on Sheikh Ibn Taymiyyah's essay on the jinn and Dr. Abul Munzir Khalil's book, The Jinn and Human Sickness, and Dr. Umar Sulaiman Al-Ashkar's book, The World of Jinn and Devils. This is a very interesting topic, often neglected topic. A few people speak on this topic. Now we have grown up in different societies and we have heard about jinn and all these things, spirits, ghosts and all. There are so many misunderstandings, misinformation about this topic. Now we are not here to entertain people, interesting topic, jinn and all. This is a reality. We have a very misunderstood idea of this world, the world of jinn. This is the topic which relates to the unseen. Today we are going to learn about the importance of this topic. The origin of the jinn, their types, their abilities, their enmity with us, their harmful effects, and the means of protecting ourselves from the jinn. Now I'm not scaring, no need to be afraid of jinn, because Allah says clearly in Surah Al-Isra, chapter number 17, verse number 65, Allah says, "Verily my slaves, you have no authority over them." Allah is telling Iblis, the shaitan, "Indeed over my believing servants there is for you no authority, and sufficient is your Lord as a disposer of affairs." अल्लाह के बंदों पे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज से डरने की बात नहीं. Now why should we know about this topic? हम ये टॉपिक को हमें क्यों जानना चाहिए? As Muslims we believe in the ghaib, as mentioned in Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 3. One of our quality is that we Muslims we believe in the ghaib, the unseen. Now why are we even bothered to go into this area? ये सारे टॉपिक्स हैं, जिन का टॉपिक क्यों? There are so many other important topics, but the reality is that our world is embroiled, with this world of jinn. हमारी रोजाना जो जिंदगी है, ये इस जिन के जिंदगी से हम एकदम मिले हुए हैं. रोजाना हमें इनका वास्ता पड़ता है. This is a real threat, a real danger, a tangible harm. Just like a scorpion or snake can harm you, these are demons. They can harm you. They have the potential to harm you. It is not a joke. We shouldn't take it lightly. You do something, or we do something that becomes a portal for these beings to enter into our lives. And then we are in a problem. Then we go here and there, then we go to the Raqis, then we search for solutions. The knowledge of this topic, the reality of jinn and magic, presents the facts about the hidden and mysterious world of jinn. Many misconceptions, exaggerated accounts, stories about the jinn have led to great fear whenever jinn is mentioned. बचपन से हम स्टोरी सुनते आ रहे हैं, सही गलत, और जैसे ही हमारी जिंदगी पे असर होता है, जैसे हम सुनते हैं जिन वगैरह, तो हम लोग डर जाते हैं. This has led to people, even Muslims, visiting witches. Witches means जो जादूगर है. कभी भी कोई तकलीफ हो जाती है तो मुसलमान घबरा जाते हैं और सीधा जादूगर के पास जाते हैं, बाबा लोग के पास जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं. And we lose our faith, our honor, our women's honor, our wealth, and our intellect. This ignorance results in both spiritual and physical harm. हमारे रूहानी, spiritual और हमारे physical भी हमको हार्म होता है. The importance of this topic. अगर हम कुरान और सुन्ना देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कुरान में सैकड़ों वर्सेस है जहां पे अल्लाह ताला हमें वार्न करते हैं कि शैतान से, जिन से आप बचो.
ये आपके दुश्मन, अदुव्वुम मुबीन, खुले हुए दुश्मन। अगर हम देखेंगे, अगर हदीस में देखेंगे तो हम जानते हैं कि we know that when you sleep recite ayatul kursi, otherwise the jinn will not harm you, the shaitan will not come near you. When you wake up, when you do wudu, take the water inside the nostrils, because the Satan lives in the upper part of the nostrils. If the person sleeps after Fajr, then Satan urinates in the ears. When you read the Quran, say A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Allah's Prophet said, take afternoon naps, because the Satan do not take afternoon naps. When you eat, say Bismillah, otherwise Satan joins you in eating. When you drink, say Bismillah and drink, otherwise Satan joins you in drinking. When you drink with your right hand. When you eat with your right hand, otherwise Satan joins in your eating and drinking. When evening comes, take your children inside your home. Allah's Prophet said, जब शाम होती है तो अपने बच्चों को घरों में ले लो, क्योंकि उस वक्त मगरिब का वक्त जो है शैतान फैलने का वक्त होता है, वो फैल जाते हैं। फिर मियाँ बीवी के बारे में सब में आसान, जो मियाँ बीवी को अलग करने की चीज शैतान the Satan is responsible. Then don't drop food. Allah's Prophet said, don't drop food. If you drop food, pick it up, clean it and eat it, and do not leave it for Satan. When you enter home, say Bismillah. The shaitan will not be able to enter your home. When you exit, say Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. The shaitan says to another shaitan, what can we do? This person is guided, protected. We cannot do. We cannot harm him. The jinn can possess you. Physical, psychological diseases, physical diseases. Yawning. Allah's Prophet said, when you yawn, don't yawn loudly. जब आप जमाई ले तो जोर से मत लो, क्यों शैतान हंसता है. When you offer salah, there is a special shaitan appointed, khanzab, to disturb you in salah. यानी हम देखेंगे, अगर मैं बोलते जाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी. यानी हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है. हर पल, हर वक्त हम जो है उनके दायरे में होते हैं. तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि शैतान से बचने के लिए दुआ कब से करना चाहिए, प्रोटेक्शन कब से मांगना चाहिए, हमारे जिंदगी के किस हिस्से से मांगना चाहिए. गेस करेगा कब से हमें शैतान का प्रोटेक्शन मांगना चाहिए? From morning? Yes, from morning, alhamdulillah. See, even before we are born, Allah's Prophet said, when a husband goes to his wife for the intimate relations, he has to make that dua, Bismillah, Allahumma jannabna shaitan, wa min jannibash shaitana ma razaqtana. Then the shaitan will not be able to join in the private relations of the wife, and if the child is born, then the shaitan will not be able to harm that child. यानी आप अंदाजा लगा सकते हो, इंसान पैदा होने के पहले माँ बाप को हुक्म दिया गया है शैतान के प्रोटेक्शन के लिए. In another hadith in Sahih al-Bukhari, hadith number 3248, and Sahih Muslim, hadith number 2366, Abu Huraira radhiyallahu anhu reports that the Prophet said, no person is born but he is pricked by Satan. जब बच्चा पैदा होता है शैतान उसको छेड़ता है, उसको उंगली करता है. And that is why the child cries at the time of birth, except for Maryam and her son, Maryam alayhi salam and her son Isa alayhi salam, because of the dua of Maryam's mother, as mentioned in Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 36. And I have named her Mary, and I seek refuge for her in you, O Allah, for her descendants from the Satan the accursed. Maryam alayhi salam की माँ ने दुआ किया था कि मरियम और उसके औलाद को शैतान से बचा. इसलिए ये दोनों चीज़ों को शैतान हार्म नहीं कर सकता. बाकी हर इंसान का बच्चे को जब भी बच्चा पैदा होता है, Satan pricks. The word in the hadith is pricks. How he pricks, how he troubles, Allah knows best. Now, till when we have to ask protection? चलो, पैदा होने के साथ हम लोग को हुक्म दिया है, कब तक पनाह मांगना चाहिए अल्लाह से? सही मुस्नद अहमद, वॉल्यूम नंबर 3, हदीस नंबर 427, सुनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 1552, सुनन अन-नसाई, हदीस नंबर 5531, मुस्तदरक हाकिम, वॉल्यूम नंबर 1, हदीस नंबर 713. Allah's Prophet taught us a dua, Allahumma inni a'udhu bika minal taraddi wal haram
व अल गरक वल हरक व औज़ु बिका अन यतखबतनी अल शैतान इंदल मौत. O Allah, I seek refuge in you from death through falling. I seek refuge in you from my house falling on me. I seek refuge in you from falling in a ditch, from drowning, from burning and decrepitude, weakness. बुढ़ापे में वीक हो जाते हैं. अल्लाह के रसूल हमें दुआ सीखे कि उससे भी पनाह मांगो. और and I seek refuge from the devil harming me at the time of my death. जब इंसान मरने को आता है तब शैतान दूसरे शैतानों को भेजता है. इब्लीस, जाओ उसे पकड़ लो, अगर वो आज बच गया तो हमेशा के लिए बच जाएगा. उसे पकड़ने जाओ, उसको सताओ, जाओ उसको ईमान से फेर दो, जाओ उसके ईमान में शक डाल दो, जाओ उसको रिपेंटेंस तौबा से बचा लो. अल्लाह के रसूल ने दुआ सीखे मरते वक्त, ए अल्लाह मैं मरते वक्त शैतान के शर से मुझे बचा. इमाम अहमद इब्न हम्बल was on his deathbed. He was, becoming conscious, unconscious. His son was asking him, "Oh father, say the shahada, la ilaha illallah." ऊपर ले. La ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal says, no, and he again unconscious. When he regained consciousness, his son asks, "Oh father, why did you say no? I was telling you to recite Shahada." He said, "Oh son, Shaitan was telling me you have succeeded. Oh Imam Ahmad, you have succeeded. And I was telling no, not until I die." Sahih Muslim, hadith number 2033. Allah's Prophet said, "Satan is present with every one of you in all your affairs." सही मुस्लिम हदीस नंबर 2033. शैतान आपके हर मामले में साथ में होता है. So we realize the importance of this topic. The Quran contains a surah named Surah Al-Jinn, chapter number 72. The word shaitan is mentioned 80 times in the Quran. The stories of Iblis, his downfall, his enmity with us is mentioned in great detail in the Quran. The harms caused by shaitan is also mentioned in the Quran and the Hadith. This shows the importance of the topic at hand. Allah warns us against the shaitan in many places in the Quran, hundreds of verses. Some of these verses are Surah Al-An'am, chapter number 6, verse number 142. Allah says, "Eat of what Allah has provided for you and do not follow the footsteps of shaitan. Indeed, he is to you a clear enemy." Surah Al-Araf, chapter number 7, verse number 27. Allah says, "O children of Adam, let not Satan tempt you as he removed your parents from paradise. Indeed, he and his tribe see you where you do not see them." Surah Al-Fatir, chapter number 35, verse number 6. Allah says, "Indeed, shaitan is an enemy to you, so take him as an enemy." अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? शैतान आपका दुश्मन है तो शैतान की तरह बर्ताव करो. शैतान को म्यूजिक, फिल्म्स सब आम है. अल्लाह ताला कह रहे शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन की तरह रखो. He only invites his party to be among the companions of the fire. Surah Nisa, chapter number 4, verse number 118 and 119. Iblis said to Allah, "I will surely take from among your servants a specific portion." Iblis Allah से कह रहे कि ए अल्लाह तुम्हारे बंदों से मैं एक स्पेसिफिक पोर्शन में लूंगा, मैं इनको मिसलीड करूंगा, मैं इनको गुमराह करूंगा. And I will arouse them in their sinful desires, and I will command them so that they will slit the ears of the cattle, and I will command them so they will change the creation of Allah. And whoever takes Satan as an ally instead of Allah has certainly sustained a clear loss. Iblis challenge कर रहा है, तेरे बंदों से मैं कुछ हिस्सा ले लूंगा, गुमराह करूंगा. Surah Al-Isra, chapter number 17, verse number 62. Iblis said, "Do you see this one whom you have honored above me?" देखो अंदाज देखो, अल्लाह को कह रहे इब्लिस, इसे देखते हो ये आदम जिसको तूने मुझ पर तरजीह दी. "If you delay me until the day of resurrection, I will surely destroy his descendants except of you." मुझे क़यामत के दिन तक अगर पनाह मिलेगी तो बहुत सारे लोगों, बहुत सारे इंसानों को, आदम के औलाद को बहुत सारों को मैं जहन्नम में लेकर बस कुछ बच जाए. He is अदुव्वुम मुबीन.
open enemy. So we have to know our enemy. जानना चाहिए ना टॉपिक. दुश्मन अल्लाह ताला इतना कह रहे कि दुश्मन है. Now, what is the reason for this enmity? दुश्मनी क्या क्यों है? Most of us we know the story of when is it mentioned in Surah Al-Araf chapter number 7 verse number 11 when Allah says bow down, and Iblis did not bow down to Adam. Now Allah asks, why did you bow down? So he says that you have created me from fire, and you have created him from clay. I am superior. Allah says, descend from paradise. Get out. You are debased. Shaitan said, reprieve me until the day they are resurrected. क़यामत के दिन तक मुझे पनाह दे, जिंदगी दे. Allah said, you are reprived. Shaitan says, because you have put me in error, I will surely sit in wait for them on your straight path. अल्लाह ताला हालांकि उस खुद के एरोगेंस से वो जहन्नम में जा रहा है, खुद के एरोगेंस से नुकसान उठा रहा है, लेकिन शैतान अल्लाह को कह रहा है, because you have put me in error, I will surely sit and wait for them on a straight path. उनके रास्ते, मैं इंसान के रास्ते पे बैठूंगा. Then I will come to them from before them, from behind them, and on their right, on their left, and you will not find most of them grateful to you. मैं हर जगह से उनको आके बहकाऊंगा. और ऐ अल्लाह, ये इंसानों में से बहुत सारे लोग तेरे नाशुक्रगुजार बनते हैं. Allah said, get out of paradise reproached and expelled. Whoever follows you among them, I will surely fill hell with you altogether. So basically our life is a struggle with the shaitan. हमारा मकसद है जन्नत में दाखिल होना, और शैतान का मकसद है इंसान को जहन्नम में दाखिल करवाना. और शैतान इज अ जिन, जिन जो है, जो बुरे जिन है, वो शैतान है, जो काफिर है, जो मुशरिक है. Who are the jinn? The word jinn comes from the verb janna, which means to hide. Singular is jinni. एक जिन की बात करते हम जिन्नी कहते हैं, जिन्नी. Plural is jinn. Jinn means many jinn. Okay? The word means something covered and concealed from us. The jinn are beings created with free will on the earth. उनको भी हमारी तरह free will है. अच्छाई बुराई को choice करने का उनमें free will है. They are in a world parallel to that of man and are invisible to us in their normal state. They are entitled to hell or heaven, paradise. They marry, they have children. It is mentioned in Akam al-Marjan, page number 33. Now we can see them only when they take forms. जब वो forms लेते हैं, इंसान का रूप लेते हैं, जानवर, तभी हम उनको देख सकते हैं, वरना जिनको हम ओरिजिनल फॉर्म में देख नहीं सकते. हम जानते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जब उनको रमज़ान में ज़कात सदका का माल के लिए प्रोटेक्शन के लिए रुकाया था, तब इंसान के रूप में आता है वो. फिर सुराका इब्न मालिक रज़ी अल्लाह उनके शक्ल में आता है जंग बदर के दौरान, मुशरिकों को भड़काने के लिए. एक लंबी स्टोरी है, इसका जिक्र है हदीस मुस्नद अहमद वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 306-364. Now Allah's Prophet said, if you hear dogs or donkeys आवाज कर रहे हो, then seek refuge with Allah, for they have seen a Satan. The animals slaughtered saying Bismillah, their bones become flesh for them. जो हड्डियां रहते जानवर के हम जो खाते, उनके लिए वो गोश्त बन जाते. And the dung of human animals is the food for their animals. It is mentioned in Jami' Tirmizi hadith number 3258 and Sahih al-Bukhari hadith number 3860. Allah's Prophet said, don't use bone or dung to clean for istinja. हड्डी और जो है डंग जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, because they are food for your brothers, that is jinn. Majmu' al-Fatawa volume number 19 fatwa number 44-45, Shaykh Ibn Taymiyyah said, the jinn may appear in animal form or human form. They may appear in the form of snakes, scorpions, and so on, or in the form of camel, cattle, sheep, horses, or birds. They may also appear in human form, as Shaitan came to the Quraysh in the form of Suraka ibn Malik at Badr. The black dog is the devil among the dogs. Allah's Prophet said the black dog is the devil among the dogs. Most often the jinn take the form of a black dog. And another hadith is mentioned, the black dog with a white spot on his chest. And if you see many dogs,
I see daily when I go for morning walk, black, complete black and white, the chest पे white रहता है. Allah's Prophet has specifically mentioned that most often they are, they take the form of these dogs, or they are inside those dogs. The jinn often appear in that form and also in the form of black cats, because the black color is more able to concentrate devilish power than other colors, and it concentrates heat. Majmu al-Fatawa, volume number 19, Fatwa number 52. Okay? ऐसा मतलब नहीं कि ब्लैक डॉग रहता नहीं रहता है, ब्लैक बिल्ली जो मारो उसको, ऐसी बात नहीं, बल्कि मोस्ट ऑफ अक्सर. The points here are that you can see only when they take forms, and all the physical laws apply. मिसाल के तौर पे एक जिन ने कुत्ते का शक्ल ले लिया, कुत्ता अपने सामने आया, आपने पत्थर दे मारा, कुत्ता मर जाता है ना, आसानी, जिन भी मर जाता है. Physical laws apply, right? And if he has to go back in his original form, he has to go to the same place. The jinn has to go to the same place where he took another form. Okay, so these are the points. Now we come to the creation. They are created from fire. And when was the creation? Long ago, long before Adam alayhi salam. It is mentioned in the Holy Quran, Surah Al-Hijr, chapter number 15, verse number 27. Allah says, and the jinn we created aforetime from smokeless fire. Very pure form of fire. Types of jinn. There are 3 types of jinn. The first type of jinn fly through the air. Now this hadith is mentioned in Mustadrak al-Hakim, hadith number 3754. At-Tabrani, Sunan al-Bayhaqi, hadith volume number 3, hadith number 85. Sahih al-Jami al-Saghir, volume number 3, page number 85 by Sheikh al-Albani. There are 3 types of jinn. The first type fly through the air. The second type of jinn consists of taking forms of snakes and dogs. The third type of jinn are based in one place, but they travel about. They travel around the earth. There are some other types of jinn as well. The ones living with mankind, they are known as Amar, dwellers. The jinns which live with human beings are known as Amar. Those who trouble the young ones are called Arwah. The evil jinn, those who trouble human beings, are called the Shaitan. The stronger and more evil among the Shaitan are known as Ifrit. Those who live in filthy places, washrooms, bathrooms, they are called Khabis. We make that dua, no? Bismillah, Allahumma inni a'udhu min al-khubsi wal khabais. This dua is mentioned in Sunan Abu Dawud, hadith number 4. And more worse, they are called al-Marid, demon, or different types of jinn. What is the nature of the jinn? Some are believers, some are unbelievers. It is mentioned in the Holy Quran, Surah Al-Jinn, chapter number 72, verse number 14 and 15. And of us some are, the jinns are telling, and of us some are Muslims and the others are disbelievers. The evil ones, the shaitan, are arrogant, ignorant, harsh, volatile, revengeful and rebellious by nature. आपने अनजाने भी उनको हार्म किया, गर्म पानी डाल दिया, फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सुराख में पेशाब नहीं करना चाहिए. अगर ऐसा कुछ गलती से भी कि आपको पता नहीं, वो इतना बदला लेते हैं आपसे, बदला लेने की कोशिश करते हैं. They are by nature, rebellious by nature. The living places, the jinn mostly live in deserted places. This is mentioned Mu'jam al-Kabir, hadith number 1143. And unclean places and graveyards. तो मिसाल के तौर पे घर बहुत देर से बंद है, कोई पुराना घर है, हवेली है, जंगल है, जहाँ पे इंसान नहीं जाते वहाँ पे अक्सर वो रहते हैं. अनक्लीन प्लेस, गंदगी की जगह पे रहते हैं. और ग्रेवयार्ड्स में, ग्रेवयार्ड्स मतलब कब्रिस्तान में रहते हैं. What are the abilities of the jinn? They have the ability to travel very fast, as mentioned in Surah Namal, chapter number 27, verse number 39. They have the ability to take different forms. They have the ability to possess a person or an animal. उसके अंदर घुस जाते हैं. They have the ability to run in the veins with the blood of a human being. This is mentioned in Sahih Bukhari, hadith number 3281. इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा एक हदीस में कि
अगर आप घर में सांप देखो तो पहले उसको सलाम करो और कहो कि ये मुसलमान का घर है और यहाँ से जाओ। अगर नहीं जाता है तो फिर मारने का वगैरह हुक्म है, डायरेक्ट मार नहीं सकते हम लोग, इसका हुक्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो डिफरेंट फॉर्म्स देते हैं और हमें पनाह मांगना चाहिए अल्लाह से। नाउ व्हाई डू दे हार्म अस? क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं हमें? पॉइंट नंबर 1, द मेन कॉज इज द शैतान वांट्स टू टेक ह्यूमन बीइंग्स टू हेल, जहन्नम में लेके जाना। मैं तो जा रहा हूं जहन्नम में, तो तुमको भी लेके जाऊंगा। सब में बड़ा फंडामेंटल रीजन। अदर रीजन इज टू फर्दर द एम्स ऑफ शैतान। शैतान जो भी चाहता है बुराई फैलाना, झगड़े लगाना और जो है हमको डिप्रेस करना, उदास करना, इंसानों को बर्बाद करना, उसके लिए फॉर टेकिंग रिवेंज, बदला लेने के लिए वो हमको हार्म करते हैं। इफ अ पर्सन हैज हार्म देम और देयर फैमिली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, सच एज हैविंग poured boiling water on them or urinated on them or fell upon them, गिर गया एक आदमी, पता नहीं उसको था, और kill them or any kind of other harm that a person may have committed against them. Okay, Sunan Abu Dawud hadith number 29, Allah's Prophet said, do not urinate in holes. पिकनिक जाते हैं, कहीं जंगल में जाते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। और सिंक में भी, जब औरतों के लिए भी जब गर्म पानी, बॉइलिंग पानी हम फेंकते हैं तो बिस्मिल्लाह बोल के फेंकना चाहिए। बिस्मिल्लाह बोल के फेंकने तो हमें हार्म नहीं होता। अगर वहाँ पे अक्सर गंदगी जगह पे होती है और गर्म पानी फेंकते हैं तो अगर वहाँ है तो हमें नुकसान होगा। बच्चे पत्थर मारते हैं, हम लोग कभी कभी ना कहीं जाते हैं तो खुला अगर ग्राउंड मिलता है तो पत्थर मारता है, ऐसे टाइम पास के लिए। बिस्मिल्लाह मारना तो बिस्मिल्लाह बोल के मारिए, वरना नहीं मारना बेहतर है, पता नहीं उधर कुछ है और आप पे असर होता है। उसके बाद है फॉर लव, जिन आपको नुकसान पहुंचाते हैं फॉर लव। दे मे डिजायर समवन एज हैपेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, जैसे इंसानों में प्यार मोहब्बत होती है वैसे जिन किसी के ऊपर आशिक हो सकते हैं। इसलिए औरतों को हुक्म है कि हिजाब करें, और जब भी हम कपड़े बदलते हैं अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि बिस्मिल्लाह बोल के बदलना चाहिए। अगर हम बिस्मिल्लाह बोलेंगे कपड़े निकालते वक्त तो एक स्क्रीन आ जाता है शैतान, जिन और हमारे बीच, वो देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम केयरलेस रहेंगे तो वो हम पर आशिक हो सकते हैं, चाहे फीमेल जिन मेल पर आशिक हो सकती है, मेल जिन फीमेल पर आशिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनदर रीजन फॉर मिस्चिफ, हॉर्स प्ले, ऐसे ही मिस्चिफ करने के लिए वो हमको सताते हैं। फिर बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक डन बाय मैजिशियंस, अगर किसी ने आप पर काला जादू किया है, किसी ने आपको जादू किया है, उसके लिए वो, और काला जादू जो है जिन के वजह, शैतान के वजह से ही होता है। विदाउट द हेल्प ऑफ जिन मैजिक इज नॉट डन, मैजिक कैन नॉट बी डन। तो अगर किसी ने काला जादू किया है किसी पे, वो जिन उसके पीछे रहता है, वो जादूगर है, वो जिन को लगा देता है पीछे, वो उसका, इसीलिए वो जादूगर जो है कपड़ा मांगता है, उसकी इंसान की बहुत सारी फोटो है, कपड़ा है कुछ, राइट। तो जब वो जाता है, वो जिन, जब जादूगर भेजता है जिन को, तब वो इंसान के पास जाता है। अगर वो अस्कार वगैरह पढ़ता है नमाज तो वो सेफ रहता है, नहीं तो फिर वो जिन मौका देखता है कब उसके अंदर दाखिल हो, कब उसको नुकसान पहुंचा, और वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये कुछ वजह है जो जिन हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नाउ व्हाट आर देयर हार्म्स, उनके हार्म्स क्या है, उनके नुकसान क्या है? देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज, स्पिरिचुअल हार्म एंड फिजिकल हार्म। रूहानी नुकसान और फिजिकल और जिस्मानी नुकसान। रूहानी नुकसान खतरनाक है, क्योंकि रूहानी नुकसान हम कुफ्र कर बैठते हैं, शिर्क कर बैठते हैं, और जो है हम लोग हमारा ईमान खो देते हैं। आप अक्सर देखते होंगे दरगाह में वगैरह जो ऐसे जो बीमार लोग हैं जिन पर असरात हुए, वहाँ लेके जाते तो खामोश हो जाते, इसीलिए लेके जाते हैं ना दरगाह पे, कब्र पे। लोगों को विश्वास बढ़ता है, अरे हाँ, यहाँ लेके आने के बाद जो बंदा है वो खामोश हो गया, कुफ्र हो गया, शिर्क शुरू किया आपने, राइट। तो स्पिरिचुअल हार्म इज मोर डेंजरस देन फिजिकल हार्म। पहला हार्म है लीडिंग अ पर्सन अवे फ्रॉम द ट्रू पाथ। सब में बड़ा जो रूहानी जो नुकसान है, हमें सही राह से हम हट जाते हैं। Allah mentioned in Surah Al-Fatir chapter number 35 verse number 6, indeed Satan is an enemy to you, so take him as an enemy. He only invites his party to be among the companions of the hellfire. अल्लाह ताला कहते हैं शैतान आपका दुश्मन है, तो शैतान उसको दुश्मन की तरह रखो, वो तुमको जहन्नम की तरफ ही बुलाता है। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं
O people, Allah commanded me to teach you, good things, the faith. Allah says, I have created my servants with a natural inclination towards my worship. ये हदीस में आता है सही मुस्लिम के, अल्लाह कह रहे हैं, I have created my servants with a natural inclination towards my worship. Naturally हम इंसान जो है अल्लाह की इबादत की तरफ झुकते हैं. But the devils turn them away from the right religion. लेकिन शैतान उनको वहां से बहकाता है. तो पहला नुकसान है कि हमें कुफ्र की तरफ ले जाता है, शिर्क की तरफ ले जाता है, हमें हमारा ईमान चला जाता है. दूसरा नुकसान, अगर वो ये नहीं कर पाता तो हमें बिदअत की तरफ ले जाता है. If he is not able to lead them to disbelief, he leads them to bidah. बिदा यानी जो दीन में नहीं है काम वो हम कर रहे. शेख सुफियान अथ-थौरी रहमुल्लाह कहते हैं, बिदा इज मोर बिलवड टू शैतान because bidah is disobeying Allah with a firm belief that he is doing something good. गुनाह करता है तो इंसान माफी मांगता है, बिदअत करता है तो माफी नहीं मांगता. बिदअत मतलब उसको लगता है कि दीन का हिस्सा है, तो शैतान को बिदअत ज्यादा पसंद है. अगर वो आपको कुफ्र की तरफ नहीं ले जा सकता, बिदअत की तरफ नहीं ले जा सकता, तो आपको गुनाहों की तरफ ले जाता है. If he is not able to lead you to disbelief or bidah, he will take you to sins. आपको गुनाह कबीरा के जिना की तरफ लेके जाएगा, गुनाह कबीरा की तरफ लेके जाएगा. वो नहीं कर पाता तो ब्लॉकिंग अ पर्सन फ्रॉम ओबेइंग अल्लाह, गुनाह की तरफ नहीं लेके जा रहे तो अच्छे काम करने, नेक काम करने में आपको सुस्ती दिलाएगा. उसके बाद अगर वो भी नहीं कर पाता तो ruining the acts of obedience to Allah, वो भी नहीं कर पा रहा है. आप अगर नमाज पढ़ रहे हो, नेक काम, उसमें जितना नुकसान हो सकता है, जितना कम हो सकता है सवाब वो करता है. रिया, शो ऑफ. अल्लाह के रसूल कहते हैं रिया, शो ऑफ. Riya is like a black ant creeping under a black stone on a moonless night. रियाकारी. मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया, मैं शुरू किया अल्लाह के लिए. मेरे दोस्त आ गए, पहली रकात, दूसरी रकात अल्लाह के लिए, तीसरी रकात में मेरे दिल में रिया आ रही है. लोग मुझे, एक स्पीकर है टॉक दे रहा है, अल्लाह के लिए कर रहा है, याद किया अल्लाह के लिए टॉक दे रहा है. 15 मिनट के बाद लोग मोबाइल से फोटो लगाना शुरू करते हैं या फिर तारीफ करते हैं, तालियां बजा रहे. रिया आ सकती है स्पीकर में. जो भी काम हो सिर्फ अल्लाह के. तो शैतान क्या करता है, रिया में डाल देता है. कुफ्र की तरफ नहीं ले जा सकता, बिदात की तरफ अगर नहीं ले जा सकता, आपको गुनाह की तरफ अगर नहीं ले जा सकता, तुमको मतलब अच्छे काम से रोक भी नहीं पा रहा है, तो जो अच्छे काम कर रहे उसके अंदर नुकसान कर रहा है. सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 123, शैतान डिस्टर्ब्स इन सलाह. देयर इज अ स्पेशल शैतान कॉल्ड खिंजब which is appointed for you to disturb in salah. Allah's Prophet said some people offer salah but they get only 40% sawab, 50% sawab, 80%. Why? Because the shaitan sawab kam kara raha. Sahih Muslim, book number 4, Kitab as-Salat, hadith number 756. Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported, the apostle, peace be upon him, said, when the call to prayer is made, when the azan is made, Shaitan runs back and breaks wind so as to not hear the call being made. And when the call is finished, when azan is finished, he comes back. When the iqamah is proclaimed, he again runs. He turns his back. But when it is finished, he comes back. He turns down to distract a man, saying, remember such and such, ye socho, wo socho. Then the person, Allah's Prophet said, then the person does not remember how much he prayed. 2 रकात पढ़ा है, 3 रकात पढ़ा. एक साहबी आते हैं अल्लाह के रसूल के पास, कहते हैं अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ने में बहुत ध्यान नहीं लगता है. तो अल्लाह के रसूल कहते हैं ये खिंजब की वजह से. तो जब भी आपको ऐसा लगे तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और अपने लेफ्ट साइड नफसा करो. नफसा यानी ड्राई स्पिटिंग, ऐसा करते हैं, उसको नफसा कहते हैं. इसको नफसा, थूकना नहीं है, थोड़ा उड़ता है, नफसा. अल्लाह के रसूल कहते हैं 3 बार नफसा करो और औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो. और वो साहबी कहते हैं मैंने ऐसा किया और मेरे उसका असर मेरे पे कम हो गया, मैं नमाज ध्यान से पढ़ने लगा. और इसीलिए एक जोक है, चुटकुला, एक इंसान नमाज पढ़ने जाता है और जो है इमाम गलती करता है. अभी आधे लोग, इमाम जो है सलाम फेरने के बाद आधे लोग कहते हैं कि इमाम साहब आपने 4 रकात पढ़े, नमाज बराबर पढ़े. आधे लोग कहते हैं नहीं इमाम साहब 3 रकात ही पढ़े. तो वो इंसान कहता है कि
मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इमाम साहब ने 3 रकात ही पढ़े, लोग तारीफ करते हैं, वाह क्या इंसान, क्या कॉन्सेंट्रेशन है सलाम, इतना कॉन्फिडेंट है। बोले लोग पूछते हैं उससे आप कैसे इतने कॉन्फिडेंट हैं? बोले मैं बिजनेसमैन हूँ। वो इंसान कहता है मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे 4 दुकान है, पहली रकात में पहली दुकान का हिसाब किताब होता है और दूसरी रकात में दूसरी, तो मैंने आज 3 दुकान का हिसाब किताब कर पाया, यानी जो है 3 रकात ही पढ़े। और अक्सर होता है हमारा मोस्ट डिफिकल्ट हमारे लिए, मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है नमाज में ध्यान दे, फोकस करना बहुत डिफिकल्ट। मैं बोल रहा हूँ बैठ के, मुझे मालूम है क्या कितना प्रॉब्लम है, इतना कॉन्सेंट्रेट ढूंढ के लाना पड़ता है, राइट। ओके, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2203, Allah's Prophet said that is a shaitan called Khanzab. So if you feel his presence, seek refuge in Allah and blow a mist to your left 3 times. उसके बाद अगर ये भी नहीं कर पाता, शैतान अगर ये भी नहीं कर पाता, तो he makes you lazy and procrastinate for doing good acts. सुस्त बना देता, कल करेंगे। इनहेरिटेंस है, एक इंसान बहुत अमीर है, सदका देना है, मस्जिद बांधना है, नहीं करता, लेट कर, प्रोक्रेस्टिनेट, शैतान सुस्ती कर। जब वो आदमी बेचारा डेथ बेड पे होता है, मरने को आ गया है, तब वो कहता है कि वो उसको दो। अरे तेरा वो जब मौत के करीब है, वो तेरा हिस्सा, वो तेरी दौलत है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी इनहेरिटेंस हो गया, बस अभी बोल के क्या फायदा। तो जो भी नेक काम है उसको वो शैतान क्या करता है, आपको लेट करवाता है। ये इन चीजों का जिक्र है मुस्नद अहमद वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 412, सहीह बुखारी इन तारीख अल कबीर वॉल्यूम नंबर 3 बुक नंबर 2 हदीस नंबर 216, इब्न माजा हदीस नंबर 4171, and these hadiths are mentioned in from the excellent book The Devil's Deception by Ibn al-Jawzi, तलबीस इब्लीस, बहुत अच्छी किताब, सबको पढ़ना चाहिए, शेख इब्न अल-जौजी। अपने पास है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने लाइब्रेरी में है, तो आप पढ़ सकते हो। द डेविल्स, कैसे शैतान आपको बेवकूफ बनाते हैं, कैसे आपको गुमराह करते हैं। अभी आते हैं साइकोलॉजिकल और फिजिकल हार्म्स के। अभी तक हमने देखा रूहानी हार्म, आपको कुफ्र की तरफ लेके जाएगा, नहीं कुफ्र की तरफ, नहीं तो बिदा की तरफ, बिदा की तरफ नहीं तो गुनाह गुनाह नहीं करवा पा रहा है तो अच्छे काम को में आपको आपका जो सवाब है वो कम करवाएगा, और फिर आपको लेजी, आपको सुस्त करेगा, रियाकारी डालेगा, यानी हमेशा आपके पीछे रहेगा। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, अटैकिंग फिजिकली, सहीह बुखारी हदीस नंबर 1210 एंड 1211। एक बार अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे थे, तो a jinn threw a flame of fire on the prophet while he was praying, right? So but the prophet overpowered that jinn. A jinn can even kill a human being, as we know from the hadith about the man from Medina. जंग खंदक में आप जानते होंगे स्टोरी, लंबी स्टोरी है कि जंग खंदक में साहबी जो हैं अल्लाह के रसूल से इजाजत चाहते हैं घर जाने की, और वहाँ पे जिन जो है सांप के शक्ल में होता है, तो इंसान को साहबी को मार देता है। Surah Al-Baqarah chapter number 2 verse number 275, Allah says those who swallow usually, जो सूद लेते हैं, they cannot rise up save as he arises from the devil has harmed by his touch. जो सूद लेते हैं वो ऐसे उठेंगे जैसे शैतान जैसे इंसानों को जैसे हार्म किया है, नुकसान उठाया, वैसे ही क़यामत के दिन उठेंगे। सहीह बुखारी हदीस नंबर 3280, Sahih Muslim hadith number 2012, Allah's Prophet said, cover up vessels, tie up water skins, close doors and extinguish lamps, for the shaitan does not open water skins or open doors or uncover vessels. अभी हम खाना वाना खाते तो कवर करना चाहिए। सुनन अबू दाऊद book number 42 hadith number 5227, Allah's Prophet said, when you go to sleep, extinguish your lamps, for the devil, for the shaitan guides a creature like this mouse to do this, to push the lamp and set you on fire. Sahih Muslim hadith number 2013, Allah's Prophet said, do not let your animals and children go out when the sun has set until the first part of the night is over. जब रात ईशा का वक्त शुरू होता है, अब आप
भेज सकते हो बाहर। For the devils come out when the sun sets until the first part of the night is over. शैतान फैलने का वक्त होता है। Sahih Bukhari, hadith number 128, prolonged blood flow in women. Allah's Prophet said, it is the devil's kick that prolongs the blood flow. Then again in the second psychological and physical harm is dreams from Satan. Shaitan ख्वाब, आपको ख्वाब आता है, बुरे ख्वाब। Satan has the ability to bring about dreams. उनके पास ability कि आपको ख्वाब, बुरे ख्वाब आपके अंदर डाले। While he is sleeping, to molest and distress a person, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए। There are three. Allah's Prophet said there are three types of dreams. This hadith is mentioned in Sunan Ibn Majah. Okay, there are three types of dreams: a good dream from Allah, a bad dream from Shaitan, and a dream from man's own imagination. ज़्यादा खाना खा लिया तो अजीब ख्वाब आ रहा है। ठीक है, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3907, Sahih al-Jami volume number 3 page number 184-185, Allah's Prophet said, if any one of you sees a dream that he likes, अच्छा ख्वाब देखा, it is from Allah and he can relate that dream. He should praise Allah, he can relate that dream. If he sees a dream which he dislikes, it is from Shaitan. He should seek refuge in Allah and not mention it to others, and then it will not harm him. बुरा ख्वाब देखते हैं, कुछ बुरा होते हुए देखते हैं, किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, वो मर रहा है, तो बोलना नहीं, आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए, और वो ख्वाब किसी के सामने बयान नहीं करना चाहिए, तब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो ख्वाब। ओके, और क्या करना चाहिए अगर बुरा ख्वाब आपको गिरता है रात में, तो क्या है अल्लाह के रसूल ने क्या क्या कहते? अगेन नफसा 3 टाइम एंड टर्न योर, ओके, डिस्टर्ब करने के लिए शैतान को, मतलब आप पे हावी हो रहा है तो आपकी पोजीशन लेफ्ट साइड राइट साइड कर दो, पोजीशन चेंज करो और 3 बार नफसा करो, ओके, एंड से आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, चेंज पोजीशन। हम सब पर जादू होता है रोजाना, पता है, हम सब पर जादू होता है। जादू है ना, कुल आउज़ु बिल फलक सूरा पढ़ेंगे तो जो 3 कांटों का जिक्र है, तो हदीस में है शैतान कम्स इन द नाइट एंड टाइज 3 knots। पहली गांठ बांधते कहते कि रात लंबी है, आराम से सो, वो हदीस लंबी हदीस। हर इंसान को, हर every person suffers magic. Again, the third physical harm is burning down houses. Sunan Abu Dawud, hadith number 5247, and Ibn Hibban. Allah's Prophet said, when you sleep at night, extinguish your lamps. It may cause fire. अभी शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है, कुछ पता नहीं रहता, हो सकता है। Number 4, Satan fights and plays with the human at the time of his death. Sunan Nasai, hadith number 5535. मौत के वक्त भी शैतान आपको छोड़ता है, आपके दिल में शक डालेगा, ईमान से दूर, रिपेंटेंस तौबा करने से आपको दूर रखेगा कि मरने को है। अभी आईसीयू वगैरह में हम देखते हैं बाजू खड़े रिश्तेदार हमारे बिस्तर पे है, उसके साथ क्या चल रहा है उसको मालूम, राइट, हमें तो दिखता नहीं, तो शैतान यहाँ तक आपको तंग करता है। हार्मिंग द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जैसे पैदा होता है बच्चा, उसको हार्म करता है। सही अल-जामी volume number 4 hadith number 171. He sends plagues. Sahih al-Bukhari hadith number 5734. बीमारियां जो एपिडेमिक्स वगैरह फैलती है, he can do that. Various skin diseases and other diseases. स्कॉलर्स कहते हैं कि कैंसर, कई टाइप के कैंसर से, अननोन रीजंस से बीमारियां हो रही है, बीमार पड़ रहा है, ये शैतान की वजह से हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बीमारी हो तो शैतान की वजह से, मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये एक एंगल हर मुसलमान को रखना चाहिए। हो सकता है बीमार पड़ रहा हूँ तो कुछ, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं, एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए कि कुछ थोड़ा बुखार आया तो भाई मेरे को नजरें बद लग गई, थोड़ा बुखार कुछ हो गया तो भाई शैतान घुस गया, ऐसा नहीं। लेकिन एक पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि सूरह 7 में जिक्र है, चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 41 में, Allah said, and make mention of our servant Ayub alayhi salam, when he cried unto his Lord, lo, the devil does afflict me with distress and torment. शैतान ने मुझे, और उनको स्किन डिजीज हुई थी। Most often scholars say skin diseases are caused by shaitan. Maybe there are medical reasons even, right? Then many types of cancers, as I said, scholars say. Then psychological diseases, many cases of depression,
people jump in front of the train, people jump from 10th floor, right? ये भी जो है शैतान साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब कर देता है कि इंसान अपने आप को मार लेता है, कुछ भी करता है। ओके, सुनन अत-तिरमिज़ी की हदीस है और यही हदीस अबू दाऊद में भी आई है। Whoever says upon leaving the house, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah, in the name of Allah, I rely on Allah, there is no might and power except Allah, right? The angels say you are guided, you are sufficed, you are protected. So farishte kehte hain, you are protected. And shaitan will leave his path. And the shaitan, in the narration of Abu Dawud, the shaitan says to another shaitan, how can you approach a man who has been guided, sufficed and protected? क्या नुकसान पहुंचाएंगे इसको? ये तो प्रोटेक्टेड इसमें आ गया, he is protected, sufficed, okay, guided, कुछ नहीं कर सकते इसको। सूरह अल-मुजादिला में आता है, चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 10 में Allah says, private conversation is only from shaitan that he may grieve those who have believed. One of the most scholars, I don't remember the name of the scholar, Salaf, said शैतान को ये पसंद है कि मोमिन को गमगीन देखे, डिप्रेशन में देखे, परेशान देखे, फिक्रमंद देखे, शैतान को पसंद है। Now seventh harm is sharing of food, drink and lodging of humans. They share in the food, drink and lodging of humans. You know, if you don't say Bismillah and they join in eating, okay? And when you close your door, say Bismillah and close your door, they cannot enter. Allah's Prophet said, tie up, this is mentioned in Sunan Ibn Hibban and Sahih, volume number 4, hadith number 90. Allah's Prophet said, tie up your water skins and close your doors when you go to bed at night and cover food and drink, for the shaitan comes, and if he does not find the door closed, he will enter. And if he does not find the water skin tied up, he will drink from it. And if he finds the door closed and the water skin tied up, he does not open any water skin, and he does not open a closed door. And if any one of you cannot find something to cover his vessel in which is his drink, let him place a stick over it. अल्लाह के रसूल कहते कुछ नहीं मिल रहा है ढांकने के लिए तो कम से कम लकड़ी तो रख दो बर्तन पे। Okay, there is a hadith in Sahih Muslim. A girl came, there was a feast, Allah's Prophet, the Sahaba were there. A girl came running and tried to grab the food. Allah's Prophet got her. Again, a Bedouin, a Baddu आता है, वो आके खाने में हाथ डालने की कोशिश करता है, अल्लाह उसका हाथ पकड़ता है। कहते ये ऐसा हो रहा है कि हम बगैर बिस्मिल्लाह के खाना शुरू हो और शैतान भी खाने में शामिल हो जाए। मैं देख रहा हूँ मेरे हाथों में शैतान के हाथ है। तो बिस्मिल्लाह कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से। आजकल फैशन हो गया है, कितने अफसोस की बात है, मतलब अनफॉर्चुनेट मेनी मुस्लिम्स नोइंगली अननोइंगली केयरलेसनेस, लेफ्ट हैंड से पीते हैं, मुंह में डालते थे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। Sahih Bukhari hadith number 3280 and Sahih Muslim hadith number 2012, Allah's Prophet said, when the wings of the night spread, maghrib जैसी होती है, keep your children in, for the devils come out at that time. Then when part of the night has passed, let them go. And close the doors and mention the name of Allah, for the shaitan does not open a closed door. And tie up your water skins and mention the name of Allah and cover your vessels and mention the name of Allah. Even if you only put something over them and extinguish your lamps. तो अल्लाह के रसूल कितना हमको गाइड कर रहे हैं। और ये टॉपिक, ये एस्पेक्ट कितना हम लोग केयरलेसनेस है, हमको दिमाग में आता ही नहीं कि ऐसी कुछ हस्तियां हैं, ऐसी कुछ क्रिएशन है। अल्लाह के रसूल कितना गाइड कर रहे हैं। हर घर से बाहर निकलते वक्त, वॉशरूम में जाते वक्त, घर से एंटर होते वक्त, मियाँ बीवी मिलते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, हर पल अल्लाह के रसूल हमें गाइड कर रहे हैं। Allah's Prophet said in Sahih Muslim, hadith number 2033, Allah's Prophet said, the shaitan is present with every one of you in everything he does. He is present even when he eats food. So if any one of you drops a mouthful, he should clean it and eat it and do not leave it for the shaitan. खाना गिर जाता तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उसे साफ करो। बहुत ही गंदगी जगह गिरा तो वो अलग बात है। फ्लोर पे गिर जाता है, टेबल पे गिर, तो उसको उठाओ, साफ करो और खाओ। शैतान के लिए मत छोड़ो। अलग
Okay, Sahih Muslim, Hadith, book number 2, Hadith number 3, and Hadith number 729. Allah's Prophet said, if a person mentions the name of Allah upon entering his house or eating, Shaitan says addressing his followers, you will find nowhere to spend the night and no dinner. इंसान अपने घर में बिस्मिल्लाह बोल के दाखिल हो रहा है, बिस्मिल्लाह बोल के खाना खा, तो शैतान दूसरे शैतान से कहता है कि ना हमें लॉजिंग है, ना रहने की जगह है, ना खाने की जगह. But if that person enters without mentioning the name of Allah, Shaitan says to his followers, you have found a place to spend the night. रात गुजारने के लिए जगह मिल गई. And if he does not mention the name of Allah while eating, Shaitan says, you have found a place to spend the night as well as food. रहने का भी इंतजाम हुआ है, खाने का भी इंतजाम हो गया. Okay. फिर third point, the third harm is if a person eats or drinks with his left hand, Shaitan eats or drinks with him. Then the eighth harm is joining in the private relations of husband and wife. Sahih Bukhari, hadith number 141. Allah's Prophet is commanded, whenever a husband wants to be intimate with his wife, he said, Bismillah, Allahumma jannabna shaitan dua. Okay? Then the shaitan will not be able to harm the child. Otherwise, scholars say the shaitan joins in the private relations of the husband. How he joins? Allah one. The ninth harm, possession. Jinn can possess a human body. आपको कब्जे में ले सकता है, आपके अंदर घुस सकता है. The jinn can give an evil eye. नजर बद लगा सकता है. Sunan at-Tirmidhi, hadith number 606, narrated by Ali ibn Abi Talib, raziyallahu anhu. Allah's Prophet said, a screen will be placed between the eyes of the jinn and the aura of the son of Adam when one of them enters the toilet if he says Bismillah, in the name of Allah. Classed as Sahih by Al-Albani in Sahih at-Tirmidhi, hadith number 496. जब भी आप कपड़े चेंज करते हो वॉशरूम में बिस्मिल्लाह कह के कपड़े चेंज करोगे तो एक ये आ जाएगा, एक स्क्रीन आ जाएगा. वरना जिन भी आप जैसे इंसान नजरे बद देते हैं, जिन भी आपको नजरे बद दे सकता है. Now the states in which jinn can enter the human body. कौन से ऐसे औकात हैं? ऐसे नहीं कि जिन कहीं भी कभी भी घुस सकता है. There are certain states in which the jinn can enter the human body. The first state is extreme anger. बहुत ज्यादा गुस्से में आप. अल्लाह के रसूल कहते हैं एक दो सहाबी झगड़ा करते थे. एक सहाबी बहुत गुस्से में आता है तो उसकी नसें ठहर जाती हैं, वो लाल हो जाता है गुस्से. तो अल्लाह के रसूल कहते हैं मुझे एक कलमा ऐसा पता है अगर वो कहे तो वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उससे गुस्सा निकल जाएगा. वो है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जो गुस्से में हो तो वुज़ू करो, क्योंकि गुस्सा जो है शैतान की तरफ से, वुज़ू जो है पानी जो है आग को ठंडा करता है. राइट. एक्सट्रीम एंगर, बहुत गुस्से में तो शैतान आप में दाखिल हो सकता है. एक्सट्रीम फियर, बहुत डर लग गया तभी भी आपको शैतान एंटर हो सकता है. एक ऐसे स्कॉलर ने कहा है कि एक जब वो राकी थे वो स्कॉलर, वो एक जिन को निकाल रहे थे तो बच्चे के अंदर दाखिल हुआ था. तो जिन से पूछते क्यों दाखिल हुए, कब दाखिल हुए, बोलते हैं कि बच्चे ने कोई मिस्टेक की थी तो माँ बाप करते हैं रूम में लॉक कर दिया उसके बाप ने. बच्चा इतना डर गया रूम में तब दाखिल. माफ करते ना अक्सर बंद करके चले जाते हैं. फिर हम भी मजाक मस्ती में लाइट बंद करके भाग जाते हैं. हम लोग ने बहुत किए पहले, या डराते, दरवाजे के पीछे ठहर के डरा देते, कुछ भी कर देते. ऐसा नहीं. प्रैंक, आजकल प्रैंक फैशनेबल है, प्रैंक वैंक नहीं करना चाहिए. फिर हॉरर मूवीज तो आजकल फैशन हो गया. हॉरर मूवीज बच्चे देख रहे हैं, हॉरर मूवीज इतने खतरनाक हॉरर मूवीज. क्यों आपको शौक है? अल्लाह ताला कहते हैं जो आप चाहोगे, आप जो आप कोशिश करोगे, जो जद्दोजहद करेंगे वो आपको मिलेगी. इतना शौक है आपको डरने का. वो जब आप एक्सट्रीम फियर के स्टेट में, जब आप जिन आपके अंदर दाखिल हो सकता है. एक्सेसिव हीडलेसनेस, केयरलेसनेस, नमाज नहीं पढ़ रहे, म्यूजिक सुन रहे, पिक्चर देख रहे, सो रहे, फजर नहीं पढ़ रहे, यानी वॉशरूम जा रहे, बिस्मिल्लाह नहीं बोल रहे, यानी केयरलेस, हीडलेस, तभी भी शैतान आपके अंदर दाखिल हो सकता है. म्यूजिक सुन रहे, शैतान गैदर्स अराउंड म्यूजिक से. कि घर में म्यूजिक बज रहा है, टीवी है, मौसीकी, फिल्म्स देख रहे हैं, तो शैतान गैदर्स. द एंजल्स मूव अवे फ्रॉम दिस थिंग. बरका आपकी निकल जाएगी घर से. झगड़े फसाद हो गए मियाँ बीवी बच्चों में, बीमार हो जाए. फिर हम कहते बीमार क्यों पड़ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, गुस्सा में क्यों आ रहे हैं, सब प्रॉब्लम.
In a state, again, there is another state, extreme passion, the time in which you are so much into your desire with your spouse or a person watching pornography. शहवत के वक्त, बहुत शहवत के वक्त भी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा जब भी करना है तो बिस्मिल्लाह कह के एक हस्बैंड को वाइफ के पास जाना चाहिए. Then other most common harm is causing separation of husband and wife. सब में कॉमन जो है शौहर और बीवी को, मियाँ बीवी को अलग करने का जो है उनका एक हार्म है. और जब सूरह बकरा में जब जादू के ओरिजिन का जिक्र है, मोस्ट सूरह बकरा में है, तो उसमें भी है कि जो है सूरह बकरा हदीस नंबर 102, सॉरी वर्स नंबर 102, सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 102 में जब मैजिक, द ओरिजिन ऑफ मैजिक इज मेंशन, हारूत मारूत का जिक्र, तब मोस्ट कॉमन इज टू सेपरेट हस्बैंड एंड वाइफ. मियाँ बीवी में झगड़ा, नेगेटिव थॉट डालना, बीवी जब भी शौहर को देखती है ये क्या ऐसे ही करते हैं वैसे ही करते हैं, गुस्सा आ जाता है. शौहर बीवी को देख थोड़ा भी गलती होती है तो गुस्से में आ जाना, ये सब वेरी कॉमन. इट इज मेंशन इन सही मुस्लिम हदीस नंबर 2813. आई हैव टाइम जी इंशाल्लाह बाय 8 जस्ट इंशाल्लाह. सही मुस्लिम हदीस नंबर 2813 and again Sahih Muslim book number 52 hadith number 60. Iblis places his throne upon water. Iblis जो है अपना जो throne है पानी पे रखता है. रोजाना शाम को अपने जो शैतान जो है उनको बुलाता है कि किसने क्या किया. The nearer to him in rank are those who are the most notorious in creating dissensions. जो ज्यादा वो पूछता है शैतान, इब्लिस पूछता है तुमने क्या किया. One of them comes and says, I did so and so. मैंने ये किया, मैंने उसको भगाया, उसको फिल्म दिखाया, उसको म्यूजिक सुनाया, उसको गलत काम करवाया. इब्लिस कहता है तुमने कुछ भी नहीं किया. Then one amongst them comes and says, I did not spare so and so until I sowed the seed of discord between a husband and wife. मैं इतना पीछे लगा मियाँ बीवी के कि जब तक मैंने उनको अलग नहीं किया उनको नहीं छोड़ा. शैतान क्या करता है, यू हैव डन वेल, तूने बेहतरीन काम किया. एंड इन अनदर वर्जन ऑफ द हदीस ही सेज ही एम्ब्रेस, इब्लिस को गले लगाता है, तूने सही काम किया. व्हाई इट इज अनदर टॉपिक. ओके, मियाँ बीवी अलग होते हैं, घर टूट जाते तो बच्चों पे असर होता है, पूरी सोसाइटी पूरी उम्मत का नुकसान होता है. तो मियाँ बीवी को अक्सर ध्यान रखना चाहिए, अस्कार पढ़ना चाहिए, नमाज अस्कार, नेगेटिव ख्यालात निकालना चाहिए, कंपैरिजन निकालना चाहिए. फिर उसके बाद है करीन. हर इंसान के साथ एक जिन लगा हुआ है, करीन. और इसीलिए वो जब आजकल जो कहते हैं कि वो मरने के बाद आजकल अमेरिका में वगैरह दिस हैज बिकम वेरी कॉमन इन द वर्ल्ड दैट the magicians they call upon the dead, and the dead comes, maybe grandfather, great grandfather come and talks the same voice and the people are happy. अरे मेरे परदादा के मिले. ये क्यों है? करीन की वजह से होता है. या फिर हम देखते हैं कि पिछले जन्म में वो बच्चा बोलता है कि वो जगह ऐसा है, वो कुछ वो है रियल. क्यों? करीन आपको बता रहे. करीन जो है हमारे जिन लगा हुआ, ये इंसान मर जाता है, करीन तो उसका ही रहता है, तो जादूगर उसका इस्तेमाल करते हैं, करीन का इस्तेमाल करते हैं. अल्लाह प्रोफेट सेड there is a jinn assigned to every human being. Allah's Prophet said in Hadith, Sahih Muslim, Hadith number 2814, there is none amongst you with whom is not a companion from amongst the jinn. The Sahaba said, Allah's Messenger with you even? Allah Sahaba कहते हैं, अल्लाह तो आपके साथ भी है. अल्लाह के रसूल कहते हैं, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की है, उसको मुस्लिम बना दिया है, वो मुझे अच्छाई की तरफ बुलाता है. लेकिन आपका जो करीन, हमारा जो करीन, आपको बुराई की तरफ ले जाता है. म्यूजिक सुनने, गलत काम करने, किसी को छेड़ने, गाली देने बहुत आसान. नमाज पढ़ने के लिए मुश्किल हो जाएगी, अच्छा काम करने के लिए सुस्ती हो जाएगी. क्यों? करीन जो है हमें बेकार है, शैतान बेकार है. Ibn Qudama said, Rahimullah, witchcraft, magic is something real. Some of it may kill, some may cause sickness, and some may separate a man from his wife. Both common. Okay? So, then again the 12th harm is cause black magic and evil eye,
नजर बद भी स्कॉलर्स कहते हैं कि शैतान की वजह से होता है। ब्लैक मैजिक बगैर शैतान के नहीं होता है। जो मैजिशियन है, जो कुफ्र करता है जिन के, वो शैतान के सामने बहुत ही गंदा कुफ्र करता है, बहुत ही कुरान को डिसएग्रेट करना ये वगैरह। फिर वो जिन शैतान जो है खुश होकर उसकी जो भी वो कहता है, जो भी मांगता है, जो भी जादू करता है उसको असर करता है। तो बहुत चीज़ें हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो है प्रिकॉशन, अभी हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ माय लेक्चर, प्रिकॉशन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशन है, देखो जिन को निकालने के लिए पहला तरीका है अनदर जिन में भी समन। अक्सर जादूगर ये करते हैं, एक जिन को निकालने के लिए दूसरा जिन समन, दैट इज हराम, कुफ्र। सेकंड, द जिन में बी रिमूव्ड बाय कंफर्मिंग डिसबिलीफ इन इस्लाम। जिन लगा हुआ दरगाह पे लेके जा रहे, डिसबिलीफ कंफर्म कर रहे, निकल रहे, चर्च में भी ठीक हो रहे, कुफ्र। वो जिन जो है कुफ्र जैसे इंसान करता है निकल जाता। थर्ड है द जिन में बी एक्सपेल्ड बाय यूजिंग कुरानिक रेसिटेशन एंड प्रेयर्स सीकिंग रेफ्यूज इन अल्लाह। दिस इज अ प्रोफेटिक मेथड। अल्लाह के रसूल ने बताया प्रोफेटिक मेथड क्या है। देन देयर इज अ वेबसाइट muhammadtim.com. okay, muhammadtim.com. he is a Salaf scholar. Muhammad Tim Hanbal is a Raqi, okay, and he has given many precautions, what should we do, etc. And he said that when there are बहुत सारी कुरान की आयतें हैं, बहुत सारी दुआएं हैं जो हम, लेकिन ये सब अस्कार, इतने सारे अस्कार, इतना सारा तो लोग नहीं कर पाते। तो मैंने एक स्कॉलर से मिलके, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, टाइम इज वेरी लेस, ओके, एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया है, हर इंसान शैतान से बच सकता है। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग अस्कार हैं। सबसे पहले औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ है, फिर औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन है। फिर वॉशरूम में जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस है। व्हेन स्टेपिंग ऑफ द हाउस बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह है। व्हेन एंटरिंग होम बिस्मिल्लाह है, खाने पीने के टाइम बिस्मिल्लाह है, राइट। व्हेन चेंजिंग क्लोथ अगेन बिस्मिल्लाह है। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो muhammadtim.com वेबसाइट है, muhammadtim.com, ऑथेंटिक सलफ बेस्ड ऑन कुरान हदीस, उस्ताद मोहम्मद टिम हम्बल। नाउ ही हैज प्रिपेयर्ड अ फॉर्मूला, सिंपल, ओके। So you and your family will need to learn. You will have to say Bismillah. When to say? When you enter the house, before doing any work, beginning any work, eating, drinking. What will happen? The shaitan is refused permission to stay in your house or eat your food. Second is the last 3 surahs of the Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. When? 3 times in the morning after Fajr, 3 times in the evening, okay, and even at night while sleeping. What will happen? They will suffice you against every single thing. आपको हर शर से दूर रखेगा। तीसरा, आयत कुर्सी कब पढ़ना है? After each obligatory prayer and before you go to sleep. What will happen? There will be nothing between you and paradise except death. अगर हर नमाज के बाद आप आयत कुर्सी पढ़ते हो तो आपके और जन्नत के बीच में अगर आप मर जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर रात में पढ़ते हो तो अल्लाह will send a protector to protect you against everything and the shaitan will not approach you. शैतान अप्रोच नहीं कर सकता। फिर फोर्थ है द दुआ व्हेन एंटरिंग द टॉयलेट, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस। बहुत हम लाइटली लेते ना ये दुआ, हमारे बच्चे भी हम नहीं पढ़ते। जस्ट बिफोर एंटरिंग द टॉयलेट, देन यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मेल एंड फीमेल शैतान हु रिसाइड इन द बाथरूम। द दुआ बिफोर लीविंग द हाउस, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। When to do that? As you are leaving the house, what will happen? The angels say you will be defended, protected, guided, and you will be protected from shaitan. Then when you set foot in a place such as when you getting out of a car, when entering someone's house, when sitting down outside, हम जा रहे हैं किसी अजनबी जगह जा रहे हैं, राइट, लॉज में जा रहे हैं, लॉज जाना पड़ता है, रुक रहे हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए मतलब बिस्मिल्लाह कह के और औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ना चाहिए। अल्लाह प्रॉफिट सेड नथिंग विल हार्म यू अंटिल यू लीव। अजनबी जगह, नई जगह जा रहे तो ये दुआ पढ़ना चाहिए, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फिर जो है सूरह इखलास आगे, the last 3 surahs every morning after Fajr, after evening, after Asr or after Maghrib, then you will be protected. Then again you will there are certain duas, okay, which we have the askar of
morning, askar in the evening, if you do that, Allah will protect you. Then there are some symptoms of possession, symptoms of evil eye, which the topic does not permit, and even time does not permit to go into that. कि इसके क्या निशानियां हैं कि आपको पोजीशन में है या फिर नजरें बद आपको लेंगी, क्या क्या निशानियां हैं. तो स्कॉलर्स ने कुछ निशानियां बताई हैं. वक्त इजाज़त नहीं देता और न ही टॉपिक में इजाज़त है इस बात की. तो इंशाअल्लाह मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें सबको शैतान के शर से महफूज रखे, शैतान से हमें महफूज रखे. हमारे ज़िंदगी में और हमारे मौत के वक्त भी अल्लाह हमें शैतान से पनाह दे, और जो हमारे बच्चों को, हमारे फैमिलीज़ को जो है महफूज रखे. और ये जो छोटे छोटे तरीके जो मैं आखिरी में बताया, वो आसान, बिस्मिल्लाह कहना, वॉशरूम में कैसे जाना है, बाहर कैसे निकल, ये सब करेंगे इंशाअल्लाह तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे इंशाअल्लाह. अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि.